Yes, sir. Okay, sir. Good morning, everybody. I welcome you all, respected teachers and listeners and students, to the first ever symposium organized by the Circle. And I would also like to thank the entire team of the Circle who had been tirelessly in efforts to organize this symposium and carry it out effectively. So, as we know that today in these times, which are tough times, we are living in the pandemic era. So, organizing a symposium right here on the very subject we all of us love heartily and dearly, that is political science, and how politics affects us and the pandemic, and how pandemic has affected the politics in which we have thrived continuously generations after generations. I would like to begin this symposium by this quote by Martin Luther King Jr., that we must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope. And with the hope that this too shall pass, and this too shall open new possibilities for us, and new facets and new dimensions to use our intellect, to use our will, to use our good nature. I welcome you all once again to this symposium organized by the Circle, where our respected teachers and many of my fellow friends will deliver a series of lectures highlighting astonishing parts and features about how life has changed and how life has been governing since the pandemic started. Now, I would like to request Rajnikant sir to please come up and explain the theme of this symposium. Yes. Oh, voice is clear now? Yes, sir. Voice is clear. Okay, thank you. First of all, I would like to thank you, thanks the entire team of the circle. Innovative thought how to, inculcate the issues like the impacting the political analysis and the political science as a discipline, and also the incorporating the other social science dimensions. So, good morning to all of you. Today, we all are here to discuss and exchange the ideas related to correlation between pandemic and politics. Pandemic is not a regular phenomenon. Rather, it is a rare occurrence in human life. But its impact on the human life is multidimensional in nature, from economic to social, psychological to political, abstract thinking to science and technology, and even artificial intelligence. I would like to sketch the brief history of pandemic, that is, regular phenomena in 100, sometimes 200 years break. 430 BC, Athens is hit by the pandemic. Then 165 AD, Anatolian plague, 250 AD, Cryptian plague, 541 AD, Justinian plague, 11th century leprosy, 1350 the Black Death, 1492 the Columbian Exchange, 1665 the Great Plague of London, 1817 first chlorella pandemic, 1855 the third pandemic, 1875 Fiji measles pandemic, 1889 Russian flu, 1980 Spanish flu, 1957 Asian flu, 91 HIV AIDS, and 2003 SARS, and recently, that is impact the globe, this COVID-19 in 2019. It is becoming increasingly clear that the COVID-19 pandemic is a complex phenomenon, both epidemiologically and sociologically. It is, on one level, an illness that has truly global reach despite major regional differences in terms of its impact. So, as far as Western societies are concerned,
The health emergency marks a break with the historical experiences of the past 100 years or so since the elimination of cholera. As far as the eastern part, there are the legacies of the post-colonial resurgence, and they are trying to create the institutions that make the more delivery to the common man. This is more a problematic phenomenon. On the another level, in terms of historical experiences, the COVID-19 pandemic is not so exceptional in the history of infectious disease. Indeed, the post 1945 period that saw the final eradication of smallpox and polio in the global society, there are certain exceptions. What we are now witnessing, at least since the late 90s, is the spread of new infectious disease, which, unlike smallpox and polio, are zoonotic disease, that is, they derive from viral infections in other animals. However, the current situation is ambivalent. On one side, there is a sense of catastrophe or regression, while on the other, there is a prospect of a transition to new times, or possibly we may just be in a state of perpetual transition to an unknown destiny. Perhaps the significance of the pandemic ultimately resides in the chances of new model of society emerging from the debris of the present. Uh, the pandemic put some for pondering of thought like health is merely a medical issue, inequality and its widening tendency, governance, governability and its capacity, psychographics and beyond, life or freedom, economic uncertainty, analytical tool and its relevance, exclusion and beyond, social distance or protecting large, e-society, e-learning or digital divide, world politics, globalization or protectionism, foreign policy, vaccine diplomacy or internal criticism, democracy, nationalism or neo-federalism, PDS system, MG Narega or health infrastructure, and so on, like some issues like who should be in charge of the pandemics, scientists or politicians? What is the nature of political decision making? Digitalization, global fact, social democracy, security, inequality, and dignity, ideologies and justice, and so on. I would like to conclude my, proposal of theme in the words of Sheldon Wolin, rightly described that continuity and change characterize concepts and ideas in the field of political science. Now, over to Devans to take the smooth presentation of the next speaker. Okay, thank you, sir, for keenly elaborating all the key concepts which we'll try to cover in the symposium of ours. And for some general categorization, I would like to tell all our listeners that this entire symposium will be divided into three prominent subparts. That is three important disciplines of political science, which all of us are well allegiant to. The first is international relations, and we'll see how pandemic and international relations go hand in hand and how they both form a somewhat symbiotic or biotic relationship, changing each other's nature altogether. And we'll have speakers to talk about that. Now, the second topic is pandemic and political philosophy, and how political philosophies have tended out to give different outcomes, different results, or somewhat we have seen that all are basis of political organization, mobilization. It has came to get a severe blow or challenge to the age of pandemic. And the third part is pandemic and Indian government and politics. And I think that it is a very important topic as we see India battles with the second wave of COVID-19, with a third wave lined up to hit us around a month or two later. So we need to see the response of the Indian state in that.
Indian government and how Indian health infrastructure needs to change through policy formations and formulations. So now, beginning with pandemic and international relations, I would like Dr. Vikas Shukla sir to please begin the first lecture of the symposium and address us with his valuable words. So over to you. Thank you. I'm audible to all? Yes, sir. Okay. Thank you, Devan, for giving the brief introduction. And first of all, we are going to start our symposium on that the pandemic and politics. That is the theme. Okay, and we have divided our symposium in 3 parts, and that in this particular part, I am going to discuss about that pandemic and international politics. So, my topic is that the pandemic and global impact analysis. मैं इस टॉपिक के ऊपर जो पैंडेमिक है, जो रिसेंटली जो इस समय वी आर द होल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस क्राइसिस, उसका ग्लोबल जो इम्पैक्ट है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, इस पर मैं अपने कुछ आर्गुमेंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात करूंगा। then I will discuss about that what is the setback of to the globalization, कि पैंडेमिक का जो ग्लोबलाइजेशन का जो सेटबैक है वो कैसे हम डील कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट दैट द यूएस चाइना राइवलरी, ओके, एंड आफ्टर दैट the other thing I will discuss that what is the crisis of multilateralism, किस तरीके से multilateralism को इसने इफेक्ट किया है। एंड आफ्टर दैट मैं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर इस पूरे पैंडेमिक का क्या असर रहा है या उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। और इसको भी मैंने कुछ सेक्शंस में बांटा है, जैसे सबसे पहले मैं रीजनल प्राइमेसी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद फिर चाइनीज इंट्रूजन है उसके बारे में बात करूंगा, फिर इंडिया का जो क्वाड में एंगेजमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसा रहा है, फिर डिप्लोमेटिक जो इंडो पैसिफिक में डिप्लोमेसी है उस पर भी क्या प्रभाव पड़ा है। एंड आफ्टर दैट द इंडिया चाइना एंड इंडिया यूएस रिलेशन पर मैं इन शॉर्ट में इस पर बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रख देना चाहता हूँ कि हम या आप सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि बेसिकली जो कोविड-19 है ये एक जो ग्लोबल क्राइसिस के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और इसका जो ओरिजिन को लेकर जो एक बहुत सारा डिबेट है कि ये चीन के वुहान शहर में ये इसका ओरिजिन होता है। अभी नया डिबेट शुरू हो गया है कि चाइना जो यूएस है वो चाइना के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि ये वुहान से स्टार्ट हो रहा है, चाइना उसको अप्लाई कर रहा है कि नहीं ये अमेरिकन वायरस है। तो बहुत सारा इसके ऊपर एक डिबेट हमारे सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में इसने पूरे ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट किया है। और उसमें बहुत सारे जो एक डेटा हमारे सामने है कि इसमें मिलियंस लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं और उनकी जान भी इसकी वजह से जा रही है। और खास बात यह है कि इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर एक सब्सटेंटिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम ना होने की वजह से और भी एक प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे डिबेट हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट हैं कि इसको हम किस तरीके से एनालाइज करें। लेकिन हाँ, एक जहां तक इसका एक असर है, जहां तक इसके हम एक इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट इसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही वाइड है, पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को इसने इम्पैक्ट किया है। और उसमें जो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है इट इज अ सेटबैक टू द ग्लोबलाइजेशन। जो इसने ग्लोबलाइजेशन का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डाला है। ठीक है, हम आज पूरे वर्ल्ड को देखें कि हजारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड संकट का सबसे जो स्पष्ट प्रभाव है वो हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और इवन जो सोशल पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर भी हम उसका इम्पैक्ट दे रहे हैं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चरल चेंज उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसका जो स्प्रेड है उसकी वजह से जो स्टेट है वो अपने आप को उसमें श्रिंकिंग हमें दिखाई दे रही है, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वो एक तरीके से सिमट गए हैं अपने दायरे में, और उन्होंने अपनी एक तरीके से सीमाएं बंद कर ली हैं, जो कि उसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें कि भी
ग्लोबलाइजेशन का जो एक हॉलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा कि हम जो है वहां पे बियॉन्ड बाउंड्री कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक बियॉन्ड बाउंड्री कॉन्सेप्शन है, लेकिन इसकी वजह से, कोविड की वजह से उन्होंने अपनी जो मी फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि वो पूरा कॉन्सेप्शन ही फॉल्स नजर आने लगा है। और इसका जो वैश्विक प्रभाव है और उससे और ज्यादा, चाहे हम IMF के बारे में बात कर लेंगे या जो है उसके द्वारा जो डेटा दिया गया है कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में दूसरा वर्ल्ड आ गया है, तो ये एक जो है उसका एक आप कह सकते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है ग्लोबल ऑर्डर में। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके श्रिंकिंग होने के लिए और या उसकी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी बाधा पड़ने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सारा बहुत सारी हमें क्राइसिस दिखाई दे रही है। बहुत सारा जो है एक एशियन पर्सपेक्टिव में भी हमको उसके वाइड जो एक इम्पैक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक जो है ग्लोबल इम्पैक्ट है जिसने जो है सबसे पहला जो सेटबैक दिया है वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ही दिया है। दूसरी जो बात है वो है कि द डीपनिंग ऑफ US चाइना राइवलरी। देखिए, हम जब कोविड क्राइसिस था उसके पहले भी एक ट्रेड वार हम दोनों देशों के बीच में देख रहे थे, लेकिन कोविड के आने के बाद इन दोनों देशों के बीच में, चाहे US और चाइना के बीच में जो हम राइवलरी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें एक तरीके से हमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, एक तरीके से हमें वहां पे जो है कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है कि वो ये वैसा ही कॉन्टेस्ट है जैसा हम कोल्ड वॉर पीरियड में देख रहे थे। जैसे कोल्ड वॉर पीरियड में जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो एक तरीके से बाइपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया था, उसी तरीके की सिचुएशन हमें आज जो है इस US चाइना राइवलरी में देखने को मिल रही है। और इसने क्या किया है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो US प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली क्या है, चाइनीज वायरस है, ठीक है, या ये वुहान शहर से निकल रहा है। चाइना ने दूसरे दिन उसमें रिप्लाई किया कि नहीं, ये अमेरिकी वायरस है। ये जो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है वो एक हम कह सकते हैं कि एक जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर असर डाल रहा है। ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ US और चाइना के ऊपर असर डालेगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज द इम्पैक्ट इन होल ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं जो इसका शिकार नहीं हो रहा है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है द क्राइसिस ऑफ मल्टीलेटरिज्म। देखिए, मल्टीलेटरिज्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जो है यूनाइटेड नेशन बना और उसमें हमने जो है एक कोऑपरेशन की बात करना शुरू किया कि जैसे ही किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आपस में मिलकर उसका उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। लेकिन कोविड के आने के बाद इसमें एक तरीके से हमें डिक्लाइन समझ दिखने लगा है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड संकट है उसने जो मल्टीलेटरिज्म की जो वीकनेसेस थी उनको इसने उजागर करने का काम किया है और ये और ज्यादा डीप होता चला गया है। और जो इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है वो बेसिकली क्या है, सबसे वीक हमें इस समय दिखाई दे रहा है। क्यों वीक दिखाई दे रहा है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे मैंने अभी कहा कि मी फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो इनका एजेंडा बन गया हर एक देश का। जैसे हम US के बारे में बात करें, उसने कहा कि मी फर्स्ट की पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे। इसी तरीके से चाइना ने भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया या अन्य देशों ने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना शुरू किया। अब देखिए क्या है कि ये जो मल्टीलेटरिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से कोलैप्स हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इवन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इसके ऊपर आप देखते हैं कि वो इस पे कोई ना तो डिस्कशन कर सकी है, ना ही इसके बारे में किसी तरीके का कोई इन्होंने ड्राफ्ट जारी कर पाए हैं। एक तरीके से आप देखने की पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, ये पूरा का पूरा जो मल्टीलेटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से कोलैप्स्ड हमें दिखाई दे रहा है। वहां पे किसी तरीके के सहयोग की बात नहीं हो रही, वहां सिर्फ और सिर्फ सभी देश अपने पर फोकस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मी फर्स्ट पॉलिसी को वहां पे वो सामने रख रहे हैं और उसी के आधार पर वो अपना काम कर रहे हैं। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे हम इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये तो इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसने रिप्लेस कर दिया है और इस पूरे क्राइसिस के दौरान सिर्फ और सिर्फ हमें इसी पूरे
जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसी पे हम देखते हैं फोकस ज्यादा हो गया है, और सभी देशों का, कोई एक इसमें पर्टिकुलर स्टेट नहीं है जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर लिया है या उसी के ऊपर बात करना चाहते हैं। सभी के सभी देशों ने इस तरीके की जो इस तरीके की एक्टिविटी है वो उसको रन कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि कोविड-19 ने किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव डाला है। तो देखिए, एक सिचुएशन है कि पैंडेमिक से दौर से हम पूरा ग्लोबल ऑर्डर गुजर रहा है, और इस स्थिति में सभी देशों की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो भी उससे प्रभावित रही है। ठीक है, बहुत सारे देशों ने वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दी है कि इसकी वजह से हम अपनी जो हेजेमनी है या हम अपनी जो प्राइमेसी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट के आधार पर उसने हर देश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करना शुरू किया है। इंडिया ने भी उसी आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा। देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा कि भारत जो है उसने वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्ट की, अपने जो नेबरहुड की जो पॉलिसी है उसको जस्टिफाई करने के लिए, कि हमने अपनी जो नेबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मतलब बिग प्लेयर, हम देखेंगे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में कि हम एक बिग प्लेयर की भूमिका में है, तो हम उस रोल को प्ले करेंगे। तो हुआ क्या है कि इसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी इम्पैक्ट किया है, और उसमें सबसे पहली बात आती है वो ये कि रीजनल प्राइमेसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कि जो भारत की जो इंडिया जो ट्रेडिशनल जो प्राइमेसी रही है इन द रीजन वाज बिल्ड ऑन द मिक्स ऑफ द मटेरियल एड एंड आल्सो द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड द हिस्टोरिकल टाइज। भारत की जो रीजनल प्राइमेसी रही है वो इन आधारों पर बेस्ड रही है। ठीक है, उसमें सबसे पहला था कि जो मिक्स मटेरियल एड था वो, दूसरा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था भारत का वो, और तीसरा जो हिस्टोरिकल टाइज। और इन तीनों ही ट्रायंगुलर जो एस्पेक्ट है इसके आधार पर उसने अपनी जो है रीजनल प्राइमेसी को हमेशा इंक्रीज किया है या उसको स्टेबल रखा है। बट नाउ द इंडियाज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज स्टेडली डिक्लाइनिंग, कि धीरे धीरे जो भारत का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इस पूरे कोविड में डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, और उसको रिप्लेस कर रहा है चाइनीज इन्फ्लुएंस वहां पर। ठीक है, तो चाइना उसके उस प्लेस को भरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो नेपाल के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, उस पूरी प्राइमेसी को वो चैलेंज कर रहा है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो रीजनल प्राइमेसी को लेकर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि द सेकंड थिंग इज दैट चाइनीज इंट्रूजन इनटू द इंडियाज स्ट्रेटेजिक स्पेस। इस स्ट्रेटेजिक स्पेस में भी चाइनीज इंक्लूजन जो है हमें दिखाई दे रहा है, जो भारत की जो एक रीजनल प्लेयर की जो भूमिका थी उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, या उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। और ये इसको हम देखते हैं कि चाइना की जो चेकबुक डिप्लोमेसी थी वो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। अब आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में चाइना का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है, पाकिस्तान में किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, उसके बाद नेपाल में किस तरीके से वो इंटरवीन कर रहा है, वहां पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है इसने क्या किया है, भारत की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है उसको एक तरीके से रिफ्रेम करने की कंडीशन में लेकर कि आपको उसमें रिफ्रेम उसको करना पड़ेगा। एंड आल्सो द थर्ड थिंग इज दैट अफेक्टिंग इंडियाज एंगेजमेंट विद द क्वाड। देखिए क्या है कि अभी हम जो क्वाड के बारे में बात कर रहे थे, चाइना की जो सुप्रीमेसी है या उसके जो इन्फ्लुएंस को उसको चैलेंज करने के लिए, उसको कर्टेन करने के लिए हमने क्वाड के कॉन्सेप्ट को लेकर आई है। यूएस और चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर जापान, ये मिलकर क्वाड के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। लेकिन जब इस कोविड क्राइसिस के दौरान ये पूरा का पूरा जो एंगेजमेंट है इंडिया का क्वाड में, उसके ऊपर भी असर पड़ा है। क्यों इसके ऊपर असर पड़ा? क्योंकि नाउ द फोकस ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियाज पॉलिसी फ्रेमिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द कोविड क्राइसिस। ठीक है, हम इस समय पूरी की पूरी तरीके से उससे शिफ्ट कर गए हैं। अब इस समय ये हम फोकस में नहीं है, ये हमारे लिए ये डिस्कशन का इश्यू नहीं बचा है कि हम किस तरीके से चाइना को काउंटर करेंगे, किस तरीके से क्वाड में अपने देश को रिप्लेस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम इस क्राइसिस से कैसे अपने आप को बाहर पहले निकालें, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट बन गया है। एंड आफ्टर दैट द अफेक्टिंग डिप्लोमेसी इन इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पर भी हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो पाइवोटल एंड इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट था, वहां पर भी तो चाइना का वहां पे हमें इंक्लूजन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है इन चाइना फेवर, पूरा इंडो पैसिफिक में जो बैलेंस ऑफ पावर के बारे में हम बात करेंगे तो वो चाइना के फेवर हमें दिखाई दे रहा है। और इंडिया इस सिचुएशन में इस समय नहीं है कि वो इंडो पैसिफिक में अपने आप को उस तरीके से स्टेबल करने की कंडीशन में आ पाए, या उस बैलेंस ऑफ पावर को एशियन कंट्री या अपने इंडिया के फेवर में लेकर आने की स्थिति में हो। तो
वो भी एक इशू रहा है, या वो भी एक इशू अभी बना हुआ है, या इस पूरे कोविड के दौरान उस पूरे वो फोकसिंग एरिया में नहीं है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। एंड आल्सो इट इज द इकोनॉमिक्स अफेक्टिंग द जियो पॉलिटिक्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यही है कि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है उसने जियो पॉलिटिक्स क्या किया है, इम्पैक्ट किया है। ठीक है, अभी हम देख रहे थे कि हमारा जो एक कोविड-19 है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द कोविड-19 हैज लेड टू द जनरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, a fall in the foreign direct investment and also the industrial production, and a rise in the unemployment will also limit India's strategic ambition। ठीक है, कि इसने पूरी तरीके से क्या किया है कि जो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है उसको भी इसने कर्टेन करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो भी उसमें भी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी कोई भी देश इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की तरफ नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट जो प्रायोरिटी है पूरे ग्लोबल ऑर्डर की वो ये है कि हम अपने आप को पहले कैसे सिक्योर कर सकें। So this is also the very very crucial point, and after that India-China relations and the India-US relations also affecting by the COVID-19 क्राइसिस। अब इस समय हमारा के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो किस आधार पर बिल्ड हो रहे हैं। जैसे अभी एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई कि हमने जो वैक्सीन जो फॉर्मेशन की बात में थी उसमें यूएस ने कहा कि नहीं हम जो है रॉ मटेरियल इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि बेसिकली द फॉरेन पॉलिसी इज टोटली बेस्ड ऑन द मैकियावेलियन मेथड एंड द मॉर्गनथाउ मेथोडोलॉजी। ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सभी देश अपने इंटरेस्ट को फोकस कर रहे हैं, वहां पे कोऑपरेशन, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जो मल्टीलेटरलिज्म की जो बात हो रही थी, तो मल्टीलेटरलिज्म को लेकर बहुत ज्यादा इस समय हमें बहुत अधिक गेन दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सभी देश अपने ऊपर ही फोकस करना चाह रहे हैं। तो दैट इज व्हाई द इंडिया चाइना रिलेशंस आल्सो इफेक्टिंग विद द कोविड क्राइसिस एंड आल्सो द इंडिया यूएस रिलेशंस आल्सो इफेक्टिंग। अब बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हमें आगे की तरफ कैसे देखना चाहिए। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम वे फॉरवर्ड की तरफ कैसे बढ़े, या न्यू अपॉर्चुनिटीज है उसकी तरफ हम कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जो सार्क है उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम अपनी जो रीजनल प्राइमेसी है या चाइना को वहां पे कर्टन करना चाहते हैं, उसकी जो सुप्रीमेसी है उसको हम थोड़ा डिक्लाइन उसमें ले आना चाहते हैं, तो हमें जो सार्क है उसमें उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बिग प्लेयर की जो भूमिका है भारत की, उसमें थोड़ा सा भारत को अपने आप को श्रिंक करना पड़ेगा। तो दैट इज आल्सो, एंड द सेकंड थिंग इज दैट फोकसिंग ऑन रीजनल हेल्थ मल्टीलेटरलिज्म। हमें जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कोऑपरेशन के बारे में, उसमें जो है मल्टी कोऑपरेशन के बारे में बात करना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरे किसी की भूमिका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें उस हेल्थ मल्टीलेटरलिज्म पर भी फोकस करना होगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं ये कह सकता हूँ कंक्लूजन में कि जो पूरा का पूरा जो पैंडेमिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या ग्लोबल पॉलिटिक्स ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बहुत ही वाइड है, और इसमें इस दौरान जिस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्टिव है, या उसको हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से उसका एक नैरो एक अप्रोच हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, और वहां पर जो मी फर्स्ट की जो पॉलिसी है उससे भी हमें बाहर निकलकर सामने आना होगा। इस पूरे ह्यूमन क्राइसिस के या ह्यूमैनिटी के लिए जो क्राइसिस क्रिएट हो गई है उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, एंड फॉर दैट द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड आल्सो I can say that United Nations should play the substantive role। उसमें वन डायमेंशनल अप्रोच के साथ उसको काम करने की जरूरत नहीं है, उसको जरूरी है कि सब्सटेंटिवली वो चीजों को डील करे। सो दिस इज एंड ऑफ माय, आई थिंक दैट समय का भी उसमें थोड़ा सा अभाव है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। Thank you, Vikas sir, for giving such a elaborate yet brief lecture, discussing all the various points and facets how pandemic has changed international global organization or globalization, as well as the nature of organizations altogether.
And now, from Vikas sir, we move on to our next speaker, Ms. Pallavi, and I call her to speak up about the pandemic and international relations sub-theme for the symposium. Hello. Hello, I'm audible. Yeah, you're audible. I will be starting in words of Lawrence Summer. The COVID-19 crisis is the third major shock to the global system in the 21st century, following the 2001 terror attacks and the 2008 financial crisis. If the 21st century turns out to be an Asian century, as the 20th was an American one, the pandemic may well be remembered as the turning point. According to the Robert D. Kaplan, coronavirus is the historical marker between the first phase of globalization and the second. Good morning to everyone. Myself Pallavi. Today my symposium sub-theme is pandemic and international politics. So सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है सिम्पोजियम का कि पैंडेमिक और पॉलिटिक्स. तो जो पैंडेमिक और पॉलिटिक्स है वो बहुत ही सहज ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मतलब जिसे कह सकते हैं इनहेरेंटली इंटरविंग है एक दूसरे से. और इसका असर हमें दिखता है कि मतलब पॉलिसी डिसीजन में. इसी वजह से हमें पॉलिसी डिसीजन जो हमारे होते हैं किसी भी डिसीज को स्प्रेड करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है. कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में हम जब देखें कि जो डिफरेंट कंट्रीज इंटरनेशनल एरेना में कि वियतनाम और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने काफ़ी अर्ली और स्ट्रिक्टली जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है कोविड-19 को अपने पॉलिसी डिसीजन से, उससे उनको कोविड-19 को इनकाउंटर करने में ज़्यादा ईजिली वो इनकाउंटर कर पाए हैं. और दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्राज़ील, रशिया और यूएसए जिस तरह से उन्होंने थोड़ा सा उनकी जो पॉलिसी मेकिंग थी और पॉलिसी जो डिसीजंस थे उनकी वजह से उनको कोविड-19 को इनकाउंटर करने में थोड़ा सा वो लोग पीछे रह गए हैं. सो मैं इस तरह से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी. और मेरा जो सिम्पोजियम है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला इंट्रोडक्शन है, फिर हम बात करेंगे आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्राइटेरिया फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जो कि प्री पैंडेमिक वर्ल्ड से पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में किस तरह से चेंजेस आया उसके बारे में बात करेंगे. फिर आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक्स प्रायर टू कोविड-19. On 3rd and 4th, we will be talking about how coronavirus affected the distribution of power and the distribution of interest. In addition to that, we will be also talking about democracy and autocracy, who is better at dealing with the threat. At last, we will be talking about the discussion. We will be discussing the ways in which the pandemic could be recognized. Its significant effects can be shown in the international relations. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम बात करते हैं पैंडेमिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और हम ये सोचते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में क्या होगा, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्री पैंडेमिक में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था. तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि यूएस और चाइना के बीच में क्या कहते हैं एक ट्रेड वॉर चल रही थी. मेजर एरिया पे ये मेन चल रहा था. और जिस तरह से कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका राइज हुआ था एज अ यूनिपोलर पावर इन द वर्ल्ड, धीरे धीरे हमें स्लो शिफ्ट दिख रहा था टुवर्ड्स बाइपोलरिटी. चाइना उस गैप को कम करना चाह रहा था और एक स्लो ट्रेंड भी हो गया था ग्रेट पावर में. तो ये चल रहा था. अब हम बात करते हैं पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में. तो जो चेंज पे जब हम बात करते हैं कि प्री पैंडेमिक से पोस्ट पैंडेमिक में चेंज आया है, उसके पहले हम एक पॉइंट कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो अब इसको डिसाइड करने की कि क्या किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है दोनों प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में. तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं. तो पहला फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड है सोशल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्टर्स. ये 3 चीजें जो हैं वही कोर कॉन्सेप्ट हैं जो डिफाइन करती है पॉलिटिक्स को भी. जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है, और जो सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है एक्टर्स आई मीन स्टेट्स का, वो भी डिफाइन करता है कि पॉलिटिक्स किस तरह से बिहेव करेगा.
अब जैसे कि अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होगा मतलब कोविड-19 के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो अटेंशन तभी आएगा जब उसमें रियलिटी होगी, मतलब कुछ अलग अगर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा तब हमें ये पता चल पाएगा। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि कितना चेंज आया है इसमें। तो जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होगा उसके भी दो फैक्टर्स हैं कि किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होने वाला है। पहला है अ शॉक जनरेटेड अ डिसकंटिन्यूअस शिफ्ट। अगर ऐसा पैंडेमिक ऐसा शॉक हो कि वो एक डिसकंटिन्यूअस शिफ्ट क्रिएट करे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, या फिर एक रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स वेयर एक्टर्स इन द सिस्टम कैन नॉट एस्केप अ पाथ डिपेंडेंट आउटकम। मतलब एक ऐसा रैपिड एक्सेलरेशन हो जाए जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ट्रेंड था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ताकि उसकी वजह से जो भी एक्टर्स हैं इंटरनेशनल एरेना में वो मतलब अपने जो पाथ डिपेंडेंट आउटकम से हट ना पाए, पीछे ना हट पाए। और पाथ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब भी जो पाथ डिपेंडेंट आउटकम का मतलब होता है कि जो पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे या पिछला जो भी क्या कहते हैं चीजें हुई हैं उसके बेसिस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसे पाथ डिपेंडेंट आउटकम बोलते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्री पैंडेमिक और एज कंपेयर टू पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन पैंडेमिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहला पॉइंट है diseases have transformed world and politics millennia. Relationship between pandemic and politics is reciprocal. मतलब कि अगर रिलेशनशिप जो पैंडेमिक और पॉलिटिक्स है वो रेसिप्रोकल है, और चेंजेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम अफेक्ट्स द स्प्रेड ऑफ डिसीज। जिस तरह से चेंजेस बढ़ेंगे उस तरह से जो इफेक्ट होगा डिसीज का वो भी होगा। थर्ड है अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड आइडिएशनल एडवांसेस ओवर द पास्ट 2 centuries। मतलब जिस तरह से इकोनॉमिक और आइडियाज में एडवांसेस आए हैं उस वजह से जो पास्ट 2 centuries में उस वजह से जो किसी भी पैंडेमिक या डिसीज का जो इफेक्ट होता है वो म्यूट हो चुका है। मतलब पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुआ है बट एक तरीके से म्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट्स हो रहा है पैंडेमिक का वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कम देखने को मिल रहा है। अब जो भी हम बात करें हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की पैंडेमिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसके भी दो मतलब एनालाइज करें कि प्री पैंडेमिक कोविड-19 से पहले जितने भी डिसीजेज हुए हैं उनका किस तरीके से उसको भी हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो 2 फेज में एनालाइज करते हैं। एक है प्री मेडिकल इन्वेंशन और पोस्ट मेडिकल इन्वेंशन। मतलब जो भी पैंडेमिक असर किया है अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो जो प्री मेडिकल इन्वेंशन में थे, और एक जो पोस्ट मेडिकल इन्वेंशन में पैंडेमिक आए हैं, मतलब इन्वेंशंस के बाद जो पैंडेमिक्स आए हैं उन्होंने कितना इफेक्ट किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। तो जब हम उसको एनालाइज करते हैं प्री मेडिकल इन्वेंशन से, हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मतलब 430 BC में पेप्लोनेशियन वॉर हुआ था, तो उसका डिजीज की वजह से जो प्लेग हुआ था, स्प्रेड हुआ था इथियोपिया से लेके एथेंस में, उसका भी बहुत बहुत बड़ा असर हुआ था पेप्लोनेशियन वॉर में, क्योंकि वहाँ के जो एथेनियन लीडर थे पेरिकल्स, उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो एथेनियंस की ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि ये सब हम थ्यूसिडाइडस के डिस्कशन से हमें पता चला है कि उन्होंने बोला था कि द सब्सिक्वेंट एथेनियन डिफीट एट साइराकूज इज प्रीफिगर्ड इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पेरिकल्स एंड द प्लेग। मतलब जिस तरह से एथेनियंस फेल हुए थे, उनका एक पर्सपेक्टिव ये था कि उनके जो एथेनियन लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद प्लेग का जो असर हुआ था। इस तरह से बहुत सारे और हम लोग प्री मेडिकल इन्वेंशन एरिया में देख सकते हैं, जैसे बुबोनिक प्लेग हुआ था जो बाइजेंटाइन एम्पायर को जो कि एक राइज कर रहा था बट उसको एकदम गिर गया था, उस कंडीशन पे आ गया था। येलो फीवर हुआ था हैथी में। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जैसे कि 1918 का इन्फ्लुएंजा था जो कि क्या कहते हैं काफी 50 to 100 मिलियन पीपल लोगों की उसमें डेथ हो गई थी।
इस तरह से प्री पैंडेमिक था। लेकिन उसके बाद जब पोस्ट मेडिकल इन्वेंशन की बात करते हैं कि अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी reduce the impact of infectious disease in great power society by order magnitude। मतलब जिस तरह से चेंजेस आए हैं मिड 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी में, उन्होंने जो मतलब पैंडेमिक के इम्पैक्ट को काफी कम कर दिया है मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। जिस तरह जितना इफेक्ट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी कम हो गया है। क्या इम्प्रूवमेंट्स में, जैसे सैनिटेशन में अर्बन सैनिटेशन इम्प्रूव हो गई है, फूड प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उस बेसिस पे काफी डिजीजेस को कंट्रोल करना काफी इजी हो गया है। इनोवेशन हो गया है मेडिकल रिसर्च में। उसके बाद जब हम मिड सेंचुरी की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ जर्म थ्योरी, जो माइक्रोबायोलॉजी है उस पे उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, काफी ज्यादा डिजीजेस के वैक्सीन्स आ चुके हैं। और उसके बाद एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन जो हुआ, ये तीनों चीज का कोऑपरेशन जो है डिजीजेस का या फिर पैंडेमिक का जो असर है उन्होंने उसको काफी कम कर दिया है। और जब हम इसके बाद जो देखते हैं, जो लास्ट सेंचुरी पैंडेमिक्स थे उनका जो बहुत ही एक्यूट शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुआ था, जिसको काउंटर करने में काफी इजी हुआ था। जैसे कि 2003 का जो सार्स आउटब्रेक था, वो चाइना के राइस को स्लो नहीं कर पाया। वो आया, वो उससे इफेक्ट हुआ था, बट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से चाइना को इफेक्ट हो कि वो उसको राइज करने में इन ग्लोबल पॉलिटिक्स उसको कोई मतलब इतनी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हुई हो। उसके बाद 2009 का H1N1 जो वायरस था, उसने भी कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं लाया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और ना ही एबोला या जीका जैसे वायरस ने कोई मेजर इफेक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं लाया। तो मेरा ये कहने का मतलब था, इस कंपेयर पे मैंने ये एनालाइज था मेरा। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कितना हुआ है इन टुडेज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहला है कि चाइना ने काफी कम कर लिया गैप को यूएस और उसके कंपैरिजन में। और जब अभी इन दोनों के रिस्पांस को देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने रिस्पांस किया कोविड-19 में, कोविड-19 के अगेंस्ट, चाइना का रिस्पांस था कि जब मतलब इनिशियली वो थोड़ा सा मतलब बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उनके यहाँ पे, जिस तरह से पॉलिसीज उनके यहाँ चलती हैं, तो इनिशियली दे सरपास द इंफॉर्मेशन कि वो बाहर निकल कर आए और पूरे वर्ल्ड को पता चले। बट दिसंबर में शायद उनके यहाँ स्टार्ट हुआ था, और जनवरी आते आते अराउंड 23 जनवरी का था, उन्होंने काफी चीजें इम्प्लीमेंट कर ली थी कि लॉकडाउन होगा, स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग हो, और एक प्रिंसिपल बहुत ही केयरफुली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, सॉफ्ट पावर का यूज किया काफी। उन्होंने पीपी किट वगैरह यूरोप हिट हार्ड कंट्रीज, जो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज को कोविड हिट हुआ था वहां पे पहुंचाया। तो इस तरह से उन्होंने काफी चीजों को हैंडल करने की कोशिश की। पावरफुल थे वो, बट इतना पसंद नहीं किए जाते थे। बट सॉफ्ट पावर के बेसिस पे थोड़ा चाइना ने अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश की, और बस उनका ये था कि उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजर्व्ड करेंसी, वो उस वजह से और ज्यादा उनका चाइना ने बहुत बजट कॉन्स्टेंट फेस किया। उसके बाद कंपेयर करते हैं यूएस को। यूएस रिस्पॉन्स का बहुत ही केयरलेस रिस्पॉन्स था उनका। इनिशियली बिकॉज ऑफ हैविंग डेमोक्रेसी ऑल्सो, वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए और काफी लेट डाउन किया उन्होंने कोविड को। और जो उनकी इस वजह से जब कंपेयर करते हैं कि कितना इफेक्ट हुआ, तो यूएस के पास ये एडवांटेज था कि उनके पास हार्ड पावर कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से उन्होंने मतलब कोशिश कर ली कि कोविड को अभी भी यूएस मतलब चाइना से ऊपर है, और सिस्टम मेकर एंड प्रिविलेज, इस वजह से उनको ये सिस्टम का, और क्योंकि डेमोक्रेसी है, उनको प्रिविलेज था कि वो इस तरह से कोविड-19 को लेट ही सही, बट उन्होंने काफी हद तक फिर भी मतलब कंट्रोल कर पाया। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट की, यूएस और चाइना के बेसिस में जो कि हुआ है। और जैसे कि हमने देखा कि जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना के साथ, टैरिफ्स वगैरह रेज कर दिए गए थे बहुत सारे गुड्स पे, और एक्सपोर्ट को उन्होंने इनहैंस किया कंट्रोल का, और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। तो ये है कि
इनिशियल इस पे ये डिफाइन करता है कि जो इनिशियल पॉलिसी रिएक्शन था दोनों का एक्सेलरेटेड द शिफ्ट इन द इंटरेस्ट। और पैंडेमिक का जो और उसके बाद क्या हुआ कि जो पैंडेमिक ने इट इज नाइदर ऑल्टरेटेड नॉर एक्सेलरेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अभी भी उनका क्या कहते हैं ना कि पहले जैसा था, अभी भी वो अपनी हेजिमनी दोनों की तरफ से यही है कि अपनी हेजिमनी को एस्टैब्लिश कर सकें, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको और इनहेंस कर सकें। इकोनॉमिक टर्म्स में उतना चेंजेस नहीं आया है। मेरा कंक्लूजन इस तरह है कि पहला है कि जैसे मतलब पहली बात करते हैं, एक टर्म है फर्स्ट इमेज बिहेवियर। जो पैंडेमिक से लोगों को जैसे यूएस में देखते हैं कि जो शॉक लगा था उसकी वजह से शायद जिस तरह से फिर ट्रम्प ने जो उनका ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम द लिबरल इंटरनेशनलिज्म, तो जो उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी वजह से शायद ही लॉस्ट। मे बी अगर पैंडेमिक शायद नहीं होता और उनको इस तरह से डील ना करना पड़ता तो शायद ही कैन बी लीडिंग अमेरिका इन नेक्स्ट 4 years also. So this can be one of the my conclusion. Third is an ideational effects. Ideational effects basically जितने भी 2 century से हम देख रहे हैं कि idea of maximizing efficiency, मतलब ज्यादातर लोग दोनों सेंचुरी से देख लें, पीपल आर मतलब कंट्रीज और स्टेट्स आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी। इस वजह से क्या कहते हैं पैंडेमिक का रिस्पॉन्स ऐसा रहा। और थर्ड है सेकंड इमेज विच इज शिफ्ट अवे फ्रॉम पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म एक वर्ड है जिसमें ऑर्डिनरी पीपल की ये कंसर्न रहता है कि जो उनके जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या कहते हैं उनके कंसर्न्स को डिसरिगार्ड किया जा रहा है एलीट पीपल के थ्रू। और थर्ड है कि कोविड की वजह से जो मतलब शायद आगे चल के ऐसा हो सकता है कि इसके जो लार्जर शॉक्स देखने को हमें मिल सकते हैं, बट अभी इनिशियली ये अभी काफी इनिशियल है ये इफेक्ट। तो इस पे डिफाइन करना कि कितना ज्यादा इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है ये नहीं होता है, ये हमें थोड़ा सा उसके लिए वी शुड वेट एंड एनालाइज। That's all from my side. Thank you. Thank you, Pallavi, for giving such a factual and descriptive state of affairs in relation to world affairs, and also giving hope to all of us that things may get better and things may change for the good of everyone. Like Socrates said, the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. And I think that pandemic has proved this quote absolutely true. And we need to build new techniques, new methods, and new infrastructure to fight the same. One small request, dear speakers, I would like to make to all of you that before you begin what you have to say, I would just request you to please briefly introduce yourself and your subtopics so that it becomes easy for all the listeners to grasp more of you and more of your content, more of your information which you try to convey. And with this minute advice of mine, now I call Ms. Anjali Srivastava to head on as the third speaker in the sub-theme Pandemic and International Relations. Hello, I'm audible. Yeah, ma'am, you're audible. Please start. Thank you, Devansh. Good morning, everybody. Okay, my name is Anjali Srivastava, and before starting this topic, today's my topic is pandemic and international politics. So before starting this topic, I'm going to tell about the little difference between endemic, epidemic, and pandemic. So endemic disease that exists permanently in a particular region and population, like malaria is a constant worry in part of Africa. Epidemic, an outbreak of disease that attacks many people at about the same time and way spread throughout to one or several communities. And pandemic, when an epidemic is spread throughout the world, like presently COVID-19. So COVID-19 के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि the novel coronavirus pandemic, popularly referred to a COVID-19, to the world by storm in January 2020.
but as we knew, firstly it broke out in China and it has been influencing the world since December 2019. The pandemic has caused the death of more than 6.9 million people so far, and things fell apart, bringing the entire world to a standstill as countries affected, both developed and developing, resorted to national lockdown to prevent the spread of the virus. अब हम बात करेंगे कि what is the impact of this pandemic coronavirus on world politics, so global issues and pandemic. तो इसका कैसे असर पड़ता है, ये हमारा डेमोक्रेसी पर भी दिखता है कि उसका जो नेचर है वो कैसे चेंज हुआ है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के फेलियर की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और कैसे वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके फेलियर की बात भी हम करेंगे. यहाँ ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरल इकोनॉमी पे भी क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करेंगे. इंक्रीजिंग स्टेट की पार कैसे इंक्रीज हो रही है उसके बारे में बात करेंगे. अफ्रीका और कोरोना का क्या हाल है, कोरोना का इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ है, और ग्लोबल और लोकल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से, और कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा है. स्टेट लीडरशिप और उनके गवर्नेंस रिस्पॉन्सेज जो हैं उसके बारे में, फॉरेन पॉलिसी और रिलेशनशिप के बारे में. ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम जल्दी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी है. तो पहले हम बताना चाहेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी में उसका नेचर चेंज हुआ है. जो डेमोक्रेसी है वो कंट्रीज मूविंग टुवर्ड डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रूल. जो इस पेंडेमिक का है इसे बैड इम्पैक्ट ऑन सिटीजन्स राइट, जो सिटीजन्स के सिविल राइट हैं उन पर भी कैसे बैड इफेक्ट पड़ा है इसका. जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि हंगरी का, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे विक्टर ओबामा, इन्होंने लेजिस्लेशन पास करके उनके पास जो कानून बनाने की जितनी भी सारी पावर्स थी वो अपने हाथ में ले ली. इससे देखा जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है. और अभी प्रेजेंटली देखें तो सिविल राइट्स जैसे कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और नॉर्मल जो राइट्स हैं इन सबका कहीं ना कहीं थोड़ा हनन हो रहा है, ये देखने को मिलता है. तो डेमोक्रेसी के लिए ये सब अच्छा नहीं है. उसका नेचर कैसे चेंज हो रहा है time to time. So the pandemic is occurring in a context of eroding democratic norms around the world. Second is international institution and failure. तो कैसे UNO, UNSC, WHO, रीजनल ग्रुप इन सबके फेलियर की हम बात करेंगे कि जो UNO है, UNSC है, ये सब मेनली फोकस करते हैं कि जब जैसे कोई न्यूक्लियर वॉर होगा या कुछ तो उस पर कैसे फोकस करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए तो इनके पास सारे एजेंडा हैं. बट अगर कहीं हम लोगों की बात होती है कि ह्यूमैनिटी क्राइसिस की, ह्यूमैनिटेरियन की कुछ बात होती है, सिक्योरिटी की, तो इसके बारे में ये ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं. और अगर हम बात करते हैं कि फेलियर ऑफ रीजनल ग्रुप्स की, यूरोपियन यूनियन की भी बात कर लें तो इटली की जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है. अभी भी वहाँ पे सप्लाईज जो हो रही है वो सब अदर कंट्रीज कर रही हैं, जैसे रशिया हो गए, अमेरिका हो गए, इन सबके द्वारा ही सप्लाई की जा रही है. अभी EU की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग जो होती रहती है, उसमें इटली ने कोविड बॉन्ड की बात करी. तो इसमें भी जो EU के कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला. तो कहीं हम लोग देख सकते हैं कि EU के मेंबर्स में है उनमें यूनिटी नहीं है, लैक ऑफ यूनिटी है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है. और ऐसे फेलियर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की कैसे ऊपर हमने बताया कि UNO, UNSC सब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में बात कम करते हैं, उनके पास जवाब कम रहता है. चेंजिंग नेचर ऑफ वर्ल्ड डिप्लोमेसी, कंट्रीज आर अडॉप्टिंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, संरक्षणवादी पॉलिसी कैसे अपना रहे हैं, जैसे कि विकास सर ने अभी बताया हम लोगों को. और कैसे वर्ल्ड मूविंग टू वर्ल्ड नैरो नेशनलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म, कोलैप्स, और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड नियो लिबरल इकोनॉमी की बात करते हैं. तो नियो लिबरल इकोनॉमी आर मूविंग टुवर्ड प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी. जैसे कि अभी इससे पहले जो भी कंट्रोल होता है वो इकोनॉमी मार्केट से बेस्ड कंट्रोल है. बट इस टाइम अगर देखा जाए तो स्टेट की पावर जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है हर जगह. स्टेट जो है वो कंट्रीज सीलिंग देयर बॉर्डर हो गए, चाहे उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में देख लें, हाइपर नेशनलिज्म अपनाया जा रहा है, नैरो सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता जा रहा है.
इंक्रीजिंग स्टेट इंटरवेंशन होता जा रहा है, जो हस्तक्षेप है वो स्टेट का बढ़ता जा रहा है। हम अफ्रीका और कोरोना के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी यूएन की, तो उस यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोरोना ऐसे ही चलता रहा तो अफ्रीका कैन बी न्यू एपिसेंटर। एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 1000 पीपल पे 1.8 बेड्स ही अवेलेबल। अगर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो 94% डिपेंड ऑन मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन। अदर कंट्रीज पे डिपेंड है, मेडिसिन मेडिकल इक्विपमेंट इम्पोर्ट हो रहे हैं। 50% तो यूरोप ही इसकी सप्लाई फुलफिल कर रहा है। 56% पीपल लिविंग ऑन स्लम एरियाज suffering from different disease like HIV, AIDS, मलेरिया। ये सब की वजह से वो लोग अपना खर्चा भी नहीं सही से चला पा रहे हैं और इस डिजीज की वजह से और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है पैंडेमिक। They need to be urgent relief package. They can face extremely poverty after COVID crisis। कह सकते हैं जैसे बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी, ये सब काफी ज्यादा बढ़ेगा अफ्रीका में। अब इंडिया पे कोरोना का क्या इफेक्ट होता है इसका थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे बैड इफेक्ट ऑन रेमिटेंसेस, जो वहाँ के प्रवासी लोग हैं, एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23% कमी आई है प्रवासी लोगों के लिए जो पैसा आता है कंट्री में, उसमें 23% की कमी है। बैड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर हुआ है। बेरोजगारी, एजुकेशन, कंपनीज, बैंक, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब पे बहुत बुरा असर पड़ा है। सेल्फ प्रोटेक्शनिस्ट की नीति अपना रहे हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, जैसे पीएम हमारे मोदी जी कहते हैं इस हिसाब से। एंड इंडिया इज, अगर हम लोग देखें कि गुडविल की बात करें, इंडिया के एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो इंडिया सपोर्ट्स मल्टीलेटरलिज्म, ब्रिक्स, सार्क, G20, इन सब में इंडिया का पॉजिटिव रोल देखने को मिलता है। सार्क की एक समिट हुई थी, वर्चुअल समिट, इसी पैंडेमिक के दौरान, तो वो इंडिया ने ही इनिशिएट किया था। 7 अदर कंट्रीज भी थी, उसमें इंडिया ने रिलीफ फंड की बात की और रैपिड रिस्पॉन्सेज टीम की कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशमेंट की बात करी। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हेल्प कर रहा है। इंडिया इज हेल्पिंग इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज एंड अफ्रीका में एड्स वगैरह कराए जा रहे हैं। आइलैंड ओशन आइलैंड्स वगैरह जो है, मॉरिशस, मालदीव जैसी कंट्रीज, इन सबको भी काफी हेल्प करी है इंडिया ने पैंडेमिक में। इंडिया क्रिएटिंग गुडविल थ्रू मेडिकल डिप्लोमेसी, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्वीन पूरी देश को, पूरे विश्व को पहुंचाया, कैसे उसने मदद करी है। एंड आइडिया एंड एटीट्यूड अबाउट सोसाइटी हैव आल्सो बीन इम्पैक्टेड विद आयरॉनिक इफेक्ट। द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक deliberations. In presently, India is badly affected from the coronavirus, लेकिन अब ये धीमे धीमे करके कम हो रहा है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट की। तो the time foreign conflict will be a good way for rulers to distract their populations from the economic consequences of the pandemic. Tension areas की बात करें तो China in the south, China Sea, India-China border in Sikkim, Iran in the Gulf and Iraq. US-China tensions are particularly salient given the broader context of populism, trade wars, competitions for superpower status, etc. Poverty, सभी जान रहे हैं कि पैंडेमिक की वजह से कितना ज़्यादा गरीबी हुई है हर जगह ही। The World Bank estimates that 40 million to 50 million people will fall into extreme poverty in 2020 compared to 2019 as a result of COVID-19. हम यहाँ थोड़ा बात करेंगे कि स्टेट लीडरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ कोविड-19 रिस्पॉन्स। गवर्नेंस और स्टेट लीडरशिप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कोविड-19 इस पैंडेमिक के दौरान। तो गवर्नमेंट वर्क पुश्ड इनटू क्राइसिस मैनेजमेंट मोड as they strove to maintain a delicate balance between saving lives and livelihood as well as the urgent need to prepare for post-COVID-19 economic and social recovery. Depending on the experience and the peak of the pandemic, different countries have started easing lockdown and opening up their economies to recover lost ground. फॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट इज डायनेमिक एंड वर्ल्ड अफेयर लाइक न्यूक्लियर थ्रेट, क्लाइमेट चेंज एंड पैंडेमिक लाइक कोविड हैव
COVID-19 have direct impact on foreign policy. Soft power exists when foreign policy preferences are based on culture, economic interdependency, and diplomacy. Humanitarian diplomacy. In the term humanitarian diplomacy, coronavirus will make humanitarian diplomacy gain more significance in international relations. Humanitarian diplomacy means that decision makers respect human rights in the conduct of foreign policy. To give an example, Turkey conducted humanitarian diplomacy in Somalia at the highest of the famine in 2011. Now, one of the big impact of coronavirus is about state dependency. So, state dependence of international organization like World Health Organization, this dependence has got stronger. Another impact of pandemic on foreign policy preferences is the need for more cooperation between states. In this process, Turkey sends medical aid to many countries. This policy showed that soft power of Turkey has got stronger during this crisis. Another impact of coronavirus pandemic is about its economy aspect. The following years, states are supposed to pursue more closed economic policies. Economic cooperation may fall while the scientific cooperation will rise. Apart, humanitarian diplomacy हो गया. Another impact of pandemic on the foreign relation will be about diplomatic process. Until COVID-19, intergovernmental affairs have generally been conducted face to face. However, after pandemic, the role of technology and internet has become more stronger. Zoom conferences today dominate international diplomatic relations. On other hand, the travel procedures between the countries will be controlled in a more detailed way in the future. Borders will be more protected because international travel were among the factors that made the pandemic become widespread. In the future, travel controls may play a big role in international politics. And पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, हालांकि अभी कोविड चल ही रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये कैसा हो सकता है वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. तो रिसेशन विल बी अ बिग चैलेंज इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड. ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, मूविंग टू वर्चुअल डिप्लोमेसी, मतलब जो अभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को ना देख के ये लोग वर्चुअल डिप्लोमेसी को देखेंगे. सेल्फ सीकिंग वर्ल्ड सोसाइटी होगी, सेल्फ सेंटर्ड आत्मनिर्भर रहेगी और हो सकती है स्टेटेड लीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या क्या जरूरत हो सकती है, तो नीड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जगह पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की ज्यादा जरूरत रहेगी. राजनीतिक सक्रियता की वजह से एक हम इस सिचुएशन को साथ में मिलकर हैंडल कर सकते हैं. और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में ये सारी चीजों की जरूरत रहेगी. रिफॉर्म इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी रहेगी. The impact of coronavirus pandemic on world politics has been discussed. As known since the end of 2019, economic relations, domestic policies, and foreign relations have changed. Travel restrictions, online diplomatic summits have gained significance. As concluding remarks, it can be said that both domestic policies and foreign policies in many states have been subjected to change due to this pandemic condition. Thank you. Thank you, Anjali ma'am, for this important discussion and telling us about how the neoliberal bubble has shrunk into authoritarian states, marking their borders strictly, and the globalization shrinking to a corner of the world, and the traditional state system, and that's the authoritarian state system coming into the center of the global plan. It was really insightful. And now I would request Arup Dada to please come on Telugu. Please, what's your question to all the listeners? Dixit, am I audible? Yeah, Dada, you're right. First of all, thank you. I am out of my postgraduate student in international relations from जादवपुर यूनिवर्सिटी. आज की सिंपोजियम की जो फर्स्ट
थीम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पैंडेमिक। मैं इस मुद्दे पे जो पावर शिफ्टिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इसके बारे पे, और इसके साथ साथ जो चेंजिंग जो ट्रेंड आए हैं और सिक्योरिटी के क्वेश्चंस, सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड था या जो एट्रीब्यूट्स था उसमें जो जो चेंज आए हैं उसके बारे पे थोड़ा कहने के कोशिश करूँगा। सो फास्ट मैं ट्राई करूँगा, शुरुआत करूँगा जॉन जे मेयरसाइमर का एक बहुत फेमस आर्टिकल है बाउंड टू फेल नाम करके, द राइज एंड फॉल ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड। उन्होंने बाय 2019 उन्होंने लिखा है, इट वाज क्लियर दैट द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर वाज इन डीप ट्रबल। ये तो 2008 से ही शुरुआती दौर में ये आ ही गए थे, जहाँ पर फ्रांसिस फुकुयामा उसका न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इंटरव्यू पे कह ही दिए थे कि इंटरनेशनल ऑर्डर पे और नए करके सोचने होंगे, जहाँ पर वो 1989 पे उसका बहुत फेमस बुक द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पे लिबरल ऑर्डर के बारे पे जो प्रेडिक्शन किए थे। तो ये तो मतलब बहुत एक बड़ी तरह से प्रूव्ड हो गए कि जो इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड है ये ज्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ी एक कॉज भी निकल रहा है। कॉज ऐसे दो तरफ से आ रहे हैं। पहला है कि जो एंड्री हेउड का बहुत फेमस बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, उधर की फर्स्ट चैप्टर पे ही एंड्री हेउड ने लिखे है कि कोपिंग विद 2011 पे उन्होंने ये बात जिक्र की है, कोपिंग विद पैंडेमिक डिजीजेस आर इम्पॉसिबल फॉर एनी स्टेट टू अकम्प्लिश ऑन इट्स ओन हाउएवर पावरफुल इट माइट बी। सबसे बड़ी बात है लिबरल वर्ल्ड का जो लीडरशिप होते थे यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस और उसके तहत जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रन करते थे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का रन करना प्रोसीडियर यूएस के लिए भी कभी कभी भारी पड़ रही। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन या और कुछ कमीशंस के मेंबरशिप को लेकर बहुत बहस हुए हैं। हेल्थ का जो WHO को लेकर भी बहुत सारे वितर्क हुआ है, और जहां पर इसका फंड भी बहुत ज्यादा यूएस से आते थे। और इसका ये जो वितर्क तैयार हो रहा है इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर के शिफ्टिंग पे, इसका और एक वजह है जहां पर फारिद जकरिया उसका एक बहुत फेमस बुक 10 लेसन्स फ्रॉम द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड उन्होंने अगली साल ही लिखे हैं, द डेमोक्रेसीज डिड नॉट सक्राम टू ऑथोरिटेरियनिज्म बट रादर इज देयर एनी क्लियर पैटर्न। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया है कि रिसेंटली जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया परफॉर्म बेस्ट, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जो दौर होना चाहिए था उस पे वो लोग बहुत अच्छे आगे निकले हैं, पर बेल्जियम, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम बहुत हालत पे चले गए। भारत तो पहले दौर पे जो फर्स्ट वेव था उनमें से बहुत अच्छा करने की ट्राई किए थे, और उसका जो फॉरेन पॉलिसी पे जो वैक्सीन मैत्री का जो नया कोशिश लाए ये भी बहुत अच्छा था। तो ताइवान एंड साउथ कोरिया की जो वायरस की जो टोटलिटेरियन जो टैक्टिक्स था वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं आ पाए। और सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन दोनों के ही जो टाइम पे जो रेजिम है, दोनों के रेजिम पे यूनाइटेड नेशंस ऐसे भी अच्छा कुछ दिखा नहीं पाए। परंतु चाइना जहां पर दुनिया की GDP -4% पे गिर गए हैं, जहां उस तरफ चाइना 2020 के लास्ट पे ही +3% के परसेंटेज के आसपास उसका GDP का रन दिखा दिए। और उसके साथ साथ चाइना की जो दुनिया भर में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसका फंडिंग भी कई बार रुके नहीं। तो इसके साथ साथ एक चीज पे ध्यान करने होंगे, जैसे कि हेनरी किसिंजर उसका बहुत फेमस डिप्लोमेसी का शुरुआत की है इस लाइन से, ऑलमोस्ट एज इफ according to some natural law in every century there seems to emerge a country with the power। और जो पावर होते हैं वो ट्राई करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अपने तरह से सेव कर, एक नया रंग देने की या जो एक नए स्ट्रक्चर देने के लिए जो उसके लिए बहुत कामयाबी हो। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने बहुत पहले ही उसका ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स पे लिखे है कि कैसे IMF का स्ट्रेटेजिक इनइक्वालिटी
जो इंटरनेशनल वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज है वो उधर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दिखे जा रहा है कि जो लिबरल वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा दूर तक पॉलिसी मेकर्स या स्पेशलिस्ट को से रन कराकर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एक्टिविटी से भी ज्यादा दूर तक नहीं रन कर पा रहे हैं। और इसका वजह की तरह से फिर से फारिद जकारिया की तरफ जाने होंगे, जहाँ पर उन्होंने लिखे है कि एंसेंट एथेंस का जो डेमोक्रेसी था वो प्लेग के वजह से बहुत ज्यादा, प्लेग एक ऐसे वजह था जिससे उसको जाना पड़ा। ऐसे लेट मिडिल टाइम पे जो स्पेनिश फ्लू आए थे या ब्लैक डेथ आए थे, और फिर आए कोविड, जब यूनाइटेड स्टेट्स का एक वर्ल्ड पे इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है और वो भी जा रहे हैं। जैसे कि क्वाड एक बहुत बड़ी इसका एग्जाम्पल्स है। उसके साथ साथ जैसे कि फॉरेन अफेयर्स के 25 का आर्टिकल पे ही जिक्र किए गए है कि इजराइल पैलेस्टाइन के जैसे इशू में यूएस का इतना कम इन्फ्लुएंस पहली बार हिस्ट्री पे हो रहा है। तो ये निश्चित है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पावर शिफ्टिंग कर रहे हैं, परंतु प्रश्न आते हैं तो पावर अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पावर जाएंगे किसके पास? दो ऑप्शंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जैसे विकास शुक्ला सर कह रहे थे कि मल्टीलैटरल जो ऑर्डर तैयार करने की ट्राई किए जा रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्मेशन की बात बार बार आ रहे थे, और ज्यादातर सिक्योरिटी काउंसिल का वेटो का पावर। और दूसरा चीज है जो एक तरह से प्रमाणित है कि चाइना का राइज अप होना। जैसे कि मेयर साइमन ने बहुत पहले ही इस बात पे कह दिया कि चाइना बहुत पीसफुली राइज अप नहीं कर सकते थे। पता नहीं कि एक कोविड ही ऐसे एक सिचुएशन उनको दे देंगे राइज अप पीसफुली राइज करने के लिए। तो इस 2 बजे पे कहने के लिए मैं पहले जानना चाहता हूँ मल्टीलैटरल ऑर्डर। ये तो बहुत सही और प्रमाणित चीज है कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड एक्चुअली डिसमेल्टेड हो गए हैं। जहां पर देखिए कि मल्टीलैटरल जो ऑर्डर थे इनका सबसे बड़े बड़े जो किरदार थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, ऐसे जो देश था, ये सारे देश अपने अपने जगह पर अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ये जो क्लैक्स है, जो मॉर्गेनथाउ पॉलिटिक्स है या मैकियावेलियन जो पॉलिटिकल व्यू है, इस पर बहुत ज्यादा चले गए हैं। तो इस वजह से जो मल्टीलैटरल ऑर्डर के जो क्लेमेशन थे, आर्गुमेंट थे, वो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पे बहुत ज्यादा अब फोर्सफुली नहीं काम कर रहा है। और इसके साथ साथ इन लोगों का परमानेंट मेंबरशिप का जो दावी था वो भी बहुत जल्दी बहुत नहीं ला पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो मल्टीलैटरल पावर के और एक पोर्शन था वो था पीसफुली और ट्रेड का जो को रिलेशन का बात था। वो मल्टीलैटरल ऑर्डर पे ये ट्रेड का को रिलेशन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पहला बात है इंटरनेशनल वर्ल्ड की जो आने जाने का जो बात है वो बहुत जगह पे रुक रहे हैं। और दूसरा बात है कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस दिखाई दे रहा है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस पे जहां पर लिबरल पॉलिटिशियंस या इकोनॉमिस्ट बहुत बार कोऑपरेशन की, बहुत ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसी जगह पर सारे देश एक नेशनलिज्म इसका प्लेस रह रहा है। नेशनल इकोनॉमी करीबन कह सकते हैं कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी फिर से राइज अप हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्रमाणित है कि जहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरुआत होता है उधर बस सोशल और पॉलिटिकल जो वैल्यूज है वो लैक होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी भी तैयार होते हैं। जैसे कि यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक जून की 2020 की एक सर्वे से कहे गए हैं कि 1/3 of US adults were suffering from anxiety of depression. The rates are almost 2 times higher for young adults, a population that has already seen a significant increase in the prevalence of mental health disorders over the past decades. Over 60% of individuals aged 18 to 24 years were estimated to be at risk for depression or anxiety, and a quarter reported considering suicide in the previous month. मतलब इससे ही
बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। बाजे यूएस का बात नहीं है, उससे भी अफ्रीका की जो देश है, ऐसे मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट का जो सारे कंट्रीज है, इधर पे प्रोवर्टी बहुत ज्यादा है। ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है प्रोवर्टी, इसका इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा ऊंचे तक चले गए। तो इसके वजह से जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इस क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ साथ जो हर एक देश की ट्राई हो रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे कमा पाए, और इससे इसके वजह से जो और इस सारे कारणों को ढाकने के लिए जो चीज हो रहा है वो कभी कई पर नेशनलिज्म, कई जगह पर हाइपर नेशनलिज्म की एक्टिविटी भी खड़ा हो रहा है। और इसके वजह से जो मल्टीलैटरल व्यू था वो व्यू, और उसके साथ साथ जो कॉस्मोपॉलिटियन व्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड पे धीरे धीरे जगह बना रहे थे, जो ह्यूमन राइट्स के जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे बहुत धक्का खाए। और उसके साथ साथ जो यूएनडीपी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 का जो प्रोग्राम था, जो सस्टेनेबल एक वर्ल्ड तैयार करने के लिए जो मिशन था, वो हम भी बहुत बड़ी वजह से धक्का खाए। और उसके साथ साथ जो चीज, और जो चाइना की पीसफुल राइज अप का बात मैंने कहा, ये तो निश्चित है कि चाइना जो जैसे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ या इंडिया की बॉर्डर क्राइसिस के साथ, जैसे ऑक्यूपेशन, उसके जो एक्सपेंशनिस्ट व्यू है, उसका जो राइज अप हो रहे हैं। हाँ, इंडिया इज सेटल्ड इट इन एडवांस मोड। सो दिखे जा रहा है कि चाइना इसके साथ साउथ चाइना सी बॉर्डर क्राइसिस, जापान के साथ क्राइसिस, नहीं करके ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसका बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है, और ऐसे कि यूएस के साथ चाइना इतना बड़ा जो प्रोडक्शन हाउस है, सबसे बड़ी जो बायर्स है चाइना की प्रोडक्ट का यूएस, उसके साथ भी वो पॉलिटिकल प्रेस्टीज के जगह पर बहुत अच्छे से लड़ाई चल रहा है। जैसे कि इसराइल को लेकर भी चाइना यूनाइटेड नेशंस पे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी स्टेप लिए है। और सबसे बड़ी बात, चाइना इस पैंडेमिक को इतने अच्छे से काम पे लगे, उसका प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ा दिए, और इससे पूरा दुनिया पे वो उसका प्रोडक्शन जितने ज्यादा हो सके उसको डिस्ट्रीब्यूशन ला रहे हैं, और उसका ट्रेडिंग अच्छा करने के ट्राई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसका जो एक्सपेंसिव भी वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो और इसके साथ साथ वर्ल्ड भी एक नए तरीकों से चाइना को देख रहा है, और कुछ देश इसको, जैसे कि कुछ दिन पहले बाइडेन सत्ता पे आने के बाद ही बोरिस जॉनसन को कहे थे कि न्यू इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर को नए फ्रेम पे लाने के लिए, जहां पर हो सकता है कि इंडिया भी जोग दे क्वाड के वजह से। परंतु इंडिया का एक प्रश्न है कि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट हैज अ गुड रिलेशन विद रशिया एज यूजुअल। सो इसके वजह से, और ये जो इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो एक पाइवोटल पॉइंट भी था, और सबसे बड़ी इसका लूजेस्ट पॉइंट भी था, वो था कि सारे रिलेशन पूरा हेजी हो जाना है, क्लाउडी रिलेशन है। तो इसके वजह से जो इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क है, ये बहुत एक अच्छे क्लियर मूड पे नहीं आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह है कि जो इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड को पावर की शिफ्टिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक चीज जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ है, और उसके साथ चाइना की जो राइज अप हुआ है, मल्टीलैटरल ऑर्डर काम नहीं कर रहे, और इन सारी चीजों के बीच पे जो नया ट्रेंड हुआ है विद द नेशनलिज्म इज लाइक दैट कि डेटा की प्राइवेसी का बात। जैसे कि फॉरेन अफेयर्स की 20 मई जून का 2021 का किया है कि डेटा इज नाउ अ सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड फॉर डिकेड्स। इंटरनेशनल ट्रेड इज गुड एंड सर्विस set the place of globalization. After the global financial crisis, however, growth in trade latitude and in its place come an explosion of cross-border data flows measured by Brandwide. Cross-border data flows growth roughly 112 times from 2008 to 2020. So ये बहुत निश्चित है कि कुछ दिन पहले एयर इंडिया जूम का जो जोमेटो की जो डेटा की जो बाहर निकल गए हैं, और ऐसे कि चाइना भी इस साइबर सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ अंटार्कटिका की जो ऑक्यूपेशन की बात है, वो भी बहुत सारे देश आगे बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। इस और जो स्टार्ट वर्ड था या
कहा जाए कि जो स्काई वॉर भी कई कई जगह पर लिखे गए हैं, ये भी चीज बहुत आगे बढ़ रहा है कि मंगल अभियान, चंद्र अभियान, ये सारी चीज भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे चीज जो जिस मीडियम से बढ़ रहे हैं वो है पॉपुलेशन, जो इस दुनिया की और कोविड के वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इस डेटा के साथ इसका कनेक्शन इस जगह पर है कि पीपल्स आर बिकेम वेरी मच फ्रेंडली विथ डिजिटल मोड, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग्स विथ रियलिटी। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि नए करके इंटरनेशनल ऑर्डर को सोचने होंगे। सबसे बड़ी इफेक्ट तो पड़ रहा है एडुकेशन पे, तो नए करके एडुकेशन को सजाने के लिए नए नए सोच भी आ रहे हैं। तो जरूर है इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज की तरफ जा रहे हैं। और अब बस मुझे जितना लगता है कि मल्टीलैटरल ऑर्डर को इस पे रिप्लेस होना चाहिए और आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और एज ए यूनिपोलर पावर एज चाइना और यूएस बोथ आर नॉट suitable for to tackle the international problems जो पास्ट में हम लोग देखे और प्रेजेंट पे भी देख रहे हैं। और छोटे करके कहूँगा कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी के जो चीज हुआ है, कॉस्ट बेनिफिट का नया बात आ रहे हैं, और ये जो इंडिया का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या सिक्योरिटी का जो बात है, तो इंडिया का ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी, जो कौटिल्यन स्कूल का जो व्यू था, वो लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। और हेल्थ सिक्योरिटी जैसे कि ह्यूमन राइट्स का और भी जो सारे सिक्योरिटी का, वो भी धीरे धीरे एक स्टेट का सिक्योरिटी के माध्यम पे आ रहे हैं। और कुछ देश इस प्रश्न पे उत्तर देने के लिए तो रोबोटिक सिविलाइजेशन की भी ट्राई अप चल रहे हैं। तो नहीं दिखा जाए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पैंडेमिक जो एक बहुत बड़ी पावर पॉलिटिक्स का शिफ्टिंग का एक वजह और एक कॉन्सिक्वेंस दोनों ही एक साथ बन रहे हैं। तो आशा रखता हूँ कि मल्टीलैटरल डेमोक्रेटिक डाइवर्सिफाइड की तरफ जाएंगे, एक ऑथोरिटेरियन वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर के पास नहीं। इतना ही, थैंक यू। Thank you, Dada, for explaining the ground realities of global politics so nicely, especially from the perspective of power and the shifting of power dynamics, which has really taken place after the pandemic and which was building up from a much longer time. And we too hope the same thing, that the world is not divided into authoritarian states with sealed borders, but becomes a free space providing opportunities for the development of all individuals. Now, the next speaker in queue is Mr. Ritik, who will also deliver on the same theme, that is pandemic and international relations, he being the second last speaker on this subject. So over to you, Mr. Ritik. Thank you, Devansh. Good afternoon, everyone. My name is Ritik. I am a student in National PG College and I am pursuing my graduation. So my topic for today's symposium is in political science and pandemic and international relations. So hello, am I audible? Yeah, you're audible. Wait a minute. So as we all know that the pandemic has hit the whole global world very hard, and every country is suffering from the pandemic. So we are going to see some key aspects which has came up with this pandemic in the global first was the impact of COVID-19 on globalization. Like globalization always been as a key factor, have always been a key factor for economic and cultural growth of the individuals in every society, from trade and travel between the countries, but it has been also a great reason for the spread of many diseases like influenza, Spanish flu, swine flu, and COVID-19 in the present scenario.
So if we see that there's many anti-globalization voices, that those who don't believe in globalization are raising their voice against the globalization, and globalization is seeing challenges in the present scenario. On if further we go, that then some countries are turning out to be self-reliant rather than being going for a globalization, because if we see the prominent reason for this is that the जो जहाँ पे जो like for manufacturing and other sorry like the manufacturing and the other aspects, like manufacture some items are being manufactured in other countries, but the raw materials are brought from other country, and the labor forces of other country, which is getting impacted because of the COVID-19. And we are not which is getting affected due to COVID-19, and the economic is also getting shrink because of the globalization. So one major effect would be on the globalization. Second part of this part is only rising nationalism and isolationism. Like some countries are tending towards the nationalist tendencies. Like उनको लग रहा है कि अब जो rather than हम लोग global market में national खुद self reliant बनते, like India is also called for आत्मनिर्भर भारत. So we can see that the countries from globalization is turning towards self-reliant, और वो ये चाहते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो उन्हीं की कंट्री में बने, और उन्हीं की कंट्री खुद के इकोनॉमी पे बेस्ड हो, ना कि ग्लोबल ट्रेंड. अगर ग्लोबली इकोनॉमी गिरती है तो उनकी भी इकोनॉमी ना गिरे. और पैंडेमिक ने मतलब बहुत सारे एक्सपोज किए, जैसे मतलब फर्दर डिस्टेंस में, जैसे प्रोडक्शन बेस और कंज्यूमर मार्केट बीच में जो डिस्टेंस रहता था, डिसेंट्रलाइजेशन और प्ले आउट रहता था, उससे ज्यादा ग्रेटर होता था मार्केट में, और डिपेंडेंसी रहती थी अदर कंट्रीज के ऊपर फॉर रॉ मटेरियल. तो वो तो खैर अभी आगे अगर टाइम में देखा है तो आगे और रहेगी रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंसी. बट द फैक्ट इज दैट जो कंट्रीज हैं वो एक रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके अपनी ही कंट्री में बना के अपनी ही कंट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगा. और जो कंट्रीज हैं वो पॉलिसी इस समय ऐसी ला रही है कि उनकी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करे, लाइक नॉट दी फॉरेन इंडस्ट्रीज बट देयर इनर इंडस्ट्री. जो उनके यहाँ की इंडस्ट्रीज है, जो छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं या बड़ी इंडस्ट्री, तो उनको फेवर करे. ऐसी चीजें लेके आ रहे, पॉलिसीज लेके आ रही है कंट्री टू हेल्प टू गेट मोर लैंड रेदर देन ग्लोबल. Third is the failure of superpower. Like those countries who say that we are superpower, Russia, America, European Union, ये लोग जो सुपर पावर रहते थे उनको बहुत बुरी तरीके से उनका फेलियर देखने को मिला. लाइक इन द टाइम ऑफ बराक ओबामा, America used to say that we will support from behind. But in Donald Trump regime, it was turned to the America first. Now, if we see that America's all alone, like because of the failure of the handling the pandemic by Donald Trump, and the Joe Biden is trying to cover the crisis. So America is all alone in the global market because America के ऊपर ट्रस्ट था पहले कंट्रीज का, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है बिकॉज हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक. और वो लोगों की हेल्प करने बजाय वो अदर नेशन की खुद हेल्प लेने लगा था. एंड उन्होंने जो सैंक्शंस लगाए थे ईरान एंड ईरान के ऊपर, उसकी वजह से ईरान और इराक जैसी कंट्रीज को वैक्सीन और प्रोक्योर करने में काफी दिक्कत हो रही थी. तो जिसकी वजह से लोग यूएस के ऊपर अब ध्यान नहीं दे रहे थे. और वहीं अगर जर्मनी, ब्राजील को देखा जाए, जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता था सबसे बेस्ट है, वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इस पैंडेमिक से हिट हुए हैं. उन्हीं के सबसे ज्यादा डेथ हुई. नंबर ऑफ डेथ आर मोर इन ब्राजील एंड यूरोपियन यूनियन. So we can say that the superpower, they were not all superpower like in weapons only, but not in health infrastructure. And so we need to change the concept of superpower from here. The third is the rising China. If we see that China was the main cause of the pandemic, but China has used this pandemic as one of its significant opportunity to rise in internationally. Like if we see, India started vaccine mastery, supporting its neighborhood nations by giving them vaccine. But because India started facing crisis of vaccine in its own nation, then India was not able to sustain that delivery of vaccine because China has taken over that. Like if we see in Bangladesh, Sri Lanka, or other nations, China is more significantly getting toward close to neighbors of India, and India is not able to do much with the nations like China.
like China was blamed as the black swan because it was said that the China is the main reason for the pandemic, but China is turning out to be said that we have not, it has been originated from somewhere else, and China is giving medical aid to other countries and saying that we are helping all other nations, because helping all other nations, and we are really good by offering medical aid in countries. And second thing, China is rising because of its RCEP belt, the economic corridor belt between the nations. Because of it, China is growing economically very fast. If other countries are slow burn or are slow burn because of the COVID-19, but China economy has recovered very fast. Because of which China is growing much more faster than other nations and influencing the other countries by his strategies and his in global impact. Second, is the new multilateralism. Like if we see the old multilateralism, the countries were not based on the humanitarian ground, but they were on their self-interest. They always focus on their self-interest, how they can be benefited by particular organization or particular organization for particular organization like WHO, WTO, World Bank, another organization were not able to handle the pandemic adequately. They like short term they haven't established एक वर्ल्ड वाइड जो गवर्नेंस का सिस्टम होता है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाता कभी, और वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर वर्क करते थे. कुछ नेशंस लाइक टू काउंटर चाइना और टू काउंटर पाकिस्तान, लाइक नेशन सिर्फ अपने इंटरेस्ट बात करते, किसी ने कभी ह्यूमैनिटेरियन फ्रेमवर्क के ऊपर बात ही नहीं की थी. तो जिसकी वजह से एक जब पैंडेमिक हिट हुआ तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो उस पर वर्क कर ही नहीं पाई. तो जहां तक ये है कि एक न्यू मल्टीलैटरलिज्म का एक नया मल्टीलैटरलिज्म लाना पड़ेगा जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ज्यादा बातें हो, हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाए, और ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आती है तो वी कैन फाइट मोर एडिक्वेटली विद इट. देन the economic impact. If we see in 2020, the World Bank has, for India, if we say, the World Bank predicted negative growth for India. But in 2020, it's not like India is going to, India's economic growth will be very, very fast. But because of the COVID 2.0, India's economic growth is going back towards negative. मतलब उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं जा रही, बट पॉजिटिवली देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्लो पेस से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हर एक नेशन की बिकॉज ऑफ कोविड 2.2. बट अमेरिका एंड चाइना, बेसिकली चाइना की इकोनॉमी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और अमेरिका की इकोनॉमी भी धीरे धीरे तेज पे आ रही है, बट इंडिया इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पीछे होता चला रहा है बिकॉज कोविड 2.2 सेकेंड वेव कोविड की आई इंडिया में, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसने कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ की इंडिया में. फोर्थ इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इफ यू सी दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लाइक रीजनल प्राइमेसी, कोविड 2.0 की वजह से जो सेकेंड वेव कोविड 19 थी उसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो रीजन जो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे इंडिया जो वैक्सीन दे रहा था, वैक्सीन नेत्री, उसमें काफी ज्यादा स्लो आ जाएंगे बिकॉज इंडिया को अपनी ही कंट्री में कोविड 19 वैक्सीन की शॉर्टेज होने लगी थी और उनको अदर नेशंस के थ्रू वैक्सीन लेनी पड़ी. लाइक अभी जयशंकर जी यूएस गए थे, वहाँ यूएस वैक्सीन कंपनी से बात करने के लिए कि उनको जल्द से जल्द वैक्सीन इंडिया को मिले. तो कहीं ना कहीं इंडिया जो एक चाइना को कंपटीशन देना चाहता था हर एक एस्पेक्ट में, वो कहीं ना कहीं इंडिया उस चीज में पीछे होता चला जा रहा है और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो एक इंटरनेशनल में था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. लाइक कोऑर्डिनेशन से अगर कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो इंडिया लाइक उसमें और ऊपर आ सकते था बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन एंड मेडिकल एड टू अदर कंट्रीज, बट सेकंड वेव से जैसे इंडिया कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आ चुका है. और इंडिया एक ग्रेट पावर एस्पिरेशन जो देखा था, लाइक इंडिया वुड बी द ग्रेट पावर इन द एशियन कॉन्टिनेंट आफ्टर रशिया और चाइना, वो कहीं ना कहीं इंडिया का धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग ऑफ द कोविड 19 एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड 19 हैज लेफ्ट ऑन इट. दूसरा ये रह सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ इंडिया चाइना इक्वेशन, लाइक इंडिया China is aggressive on all the borders, like if we say LAC और other points, China बहुत ज्यादा aggressive है borders पे रह के, जिसकी वजह से इंडिया चाइना की डिप्लोमेसी वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से हार्ट हो रही है. लाइक China is helping all India or every political or every mental aid, but on the other hand India is saying like China is जो बॉर्डर पे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बट एक मेडिकल एड देके वो अपने आप को अपनी बहुत ज्यादा अच्छा दिखना चाहता है. So which is not a good part of this. Second is that
जो इंडिया कम्पीट करना चाहता था चाइना से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन, वो कहीं ना कहीं इंडिया का पीछे होता चला जाएगा, क्योंकि कंट्रीज इंडिया पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर पा रही हैं, और चाइना जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है वो कहीं ना कहीं अभी और आगे रहेगा, क्योंकि चाइना की पॉलिसी बहुत ज़्यादा अलग है इंडिया से देखा जाए तो। और चाइना इस समय बहुत अच्छे तरीके से उससे कोविड-19 से बहुत अच्छे तरीके से निकला, मतलब जो न्यूज़ेस में आता है ऐसा लगता है कि चाइना ने कोविड-19 को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अगर हम लोग वे फॉरवर्ड देखें तो इंडिया को कहीं ना कहीं सार्क जो है उसको दोबारा से रीजेनिवेट करना पड़ेगा, कई सारी नई चीजें लानी पड़ेंगी, और जो मल्टीलैटरलिज्म है वो एक रीजनल हेल्थ पे उसको फोकस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि वो अपने साथ साथ जो उसके नेबरहुड कंट्रीज है लाइक चाइना जो श्रीलंका बांग्लादेश में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको भी साथ लेके जा सके। Then the- it- sorry, there has been an issue with. So these were some of the key aspects of the Indian, and the second and the last point was of the rising inequality. If we see the inequality, there are some problem in the PPT, because of which I'm not able to share that PPT. So if we, the last point was the rising inequality. Rising inequality is like that the pandemic has exposed a great inequality in the society between rich and poor. Like if we see the Indian migrant crisis, it was the one of the largest exodus of the laborers from one place to another after 1947. So we can say that the pandemic has exposed one of the major issues which need to be addressed by the countries and the organizations to organization, the gap between the rich and poor. So rich and poor. So every country needs to draw on the and decrease the inequality between the rich and poor. Like we can also see in the U.S. borders between U.S. and Mexico, the migration of the people. So if we have to also counter this major issue. So if we conclude, the pandemic has exposed many things in the global market, like the effect of globalization, that we never talked about healthcare system. We always used to talk about the weapons and to counter terrorism and all that, but no country talked about health system. This will brought a new change by countries talking about health, more on health and the environment changes. Countries with sophisticated infrastructure and sanitization were also undergone the epidemiological transition, facing difficulties in controlling the pandemic. A countries which has more sophisticated infrastructure, जिसकी वजह से उनका जो पैंडेमिक हैंडलिंग था वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो भी हिट हो पाई थी, ताकि तो हम लोग को उनके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। और जो था कि लेस डेवलप कंट्रीज अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनको लाइक वैक्सीन प्रोवाइड करना। तो लाइक WHO हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम नोन एज कोवैक्स, जिसमें हर एक वैक्सीन मैन्युफैक्चर और हर एक कंट्री को इक्वली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, वो चीजें उसमें हैंडल की जाएंगी। And the third is the inadequate surveillance of worldwide and inability directed controlling the pandemic। जो मतलब हम लोग देखा है, जो inadequate surveillance of the worldwide, जैसे कंट्रीज में कभी सर्वेलेंस नहीं किया कि कौन सा वेरिएंट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसको कैसे काउंटर करना है। काउंटर किया गया, बट जो इफेक्टिवनेस थी वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी। These were one of the major issues in the pandemic, and I forgot one point I would like to cover that. One is like vaccine equity, which is one of the major issues in this pandemic. If we talk about vaccine equity, vaccine has been one of the major cure for this pandemic. Like USA has vaccinated everyone in this country, and they're moving towards no mask. So vaccine is, if we talk about vaccine, India has started a program, Vaccine Maitri, in which India distributed 60.5 million doses to 85 countries commercially and as a gift also. So commercially and a gift also. And
WHO has also started a program known as COVAX, in which the WHO will assure that every country has been benefited with the vaccine, and every country has got adequate amount of vaccine, and everyone is vaccinated in the nation. So, vaccine equity is one of the major things to be addressed in this context. So I would like to end here. Thank you so much. Thank you, Ritik, for delivering this lecture and telling us all the ins and outs of various aspects of corona pandemic as well as international politics. And now, after Ritik, I think that we are coming to the end of one of the sections of our symposium today, that is pandemic and IR. And the last lecture is to be delivered by Ms. Achal. So I request Ms. Achal to come and deliver the lecture on pandemic and international relations and how it changes our lives. Thank you, Devansh. Now I would like to tell my topic is pandemic and international politics. It has 3 parts: introduction, comparative analysis, which has subtopics, 5 subtopics, and conclusion. Today, our world is facing one of the deadliest global emergencies which we have never seen before. In 2020, we have seen Europe became the epicenter of COVID-19. Now, developing countries are also facing this impacts of this coronavirus. Number of deaths is increasing by 30% every single day. So it has resulted in unprecedented social and economic disruption worldwide. Now, my comparative analysis is in 5 parts. First is from politics of aid and mass diplomacy to vaccine nationalism and distribution. China and Russia are labeled as bad Samaritans because they are using it as an instrument for broader geopolitical goals. Vaccine allocation must not become a zero-sum game, जहाँ पे एक country तो जीत जाती है पर दूसरी हार जाती है. So vaccine nationalism is not morally correct. It's a self-defeating and counterproductive. So international collaboration among scientists was critical during the vaccine development, but now we can see how weak cooperation is becoming the major barrier worldwide for worldwide vaccination. हम ये देखते हैं कि जहाँ पे रिच कंट्रीज हैं जिनकी 16% पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड वैक्सीन सप्लाई का 60% पहले से लेकर रखे हुए हैं ताकि उनकी 70% जो पॉपुलेशन है वो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सके. सो अगर unvaccinated population will lead to the new virus mutations. If one person is not safe, the whole world is not safe. But we can COVAX, which is struggling to purchase enough doses for 20% population of low-income countries. A thematic seal between world's haves and have-nots is neither desirable nor possible. So next is solidarity versus self-help. जैसे कि साइबेरियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो यूरोप की सॉलिडारिटी है वो एक फेरी टेल है because it was overshadowed by long tussle over the budget and severely lagging vaccination rates. Lack of solidarity among European Union member states, where Germans were free to move and Spanish and Italians were confined to their homes. Unilateral border controls supply of essential goods. हम इंटरनेशनल लेवल पे ये देखते हैं कि गवर्नमेंट्स अपना सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भाग रही हैं और उन्होंने जो एक डिसाइड किया है कि हम कॉमन ग्लोबल गुड का ध्यान रखेंगे वो नहीं हो पा रहा है. और ओवर डिपेंडेंस ऑन अमेरिका इट्स प्रूव दैट we need to have other countries contributing their share of responsibility.
और वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको बहुत ज़्यादा डाउन प्ले किया है कि उसको बहुत ही ऐसा जोक की तरह ट्रीट किया है. Countries all around the world need to have a coordination to deal with this pandemic, particularly near border regions. जैसे कि विकास सर ने बताया कि collapse of multilateralism हो गया है और US और China they all are going all alone. So third is authoritarianism versus liberal democracy. China is trying to portray that communist model is more relevant to deal with this health crisis by putting tighter controls on their individuals. But independent media न होने की वजह से हम exact number नहीं जान सकते और ना ही आप पता कर सकते हैं कि कितना severe है वहाँ पे चीज़ें. Despite attempts made by the politicians to tell that their political model is better, records ये बताते हैं कि there is no strong correlation between efficacy and a regime type. Do we really need dictatorship to handle this killer virus? I think no. Some autocracies have worked well like Singapore, while some have behaved poorly like Iran. कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज भी हैं जो एकदम धराशायी हो गई, जैसे कि इटली, यूएस, और बाकी कुछ और हैं जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया लाइक साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग वगैरह का गवर्नेंस सिस्टम अलग है, लेकिन उनके जो लेसन्स उन्होंने लिए सार्स से वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा. उन्होंने स्पीडी टेस्ट और इमरजेंसी लॉज उनके पास पहले से प्रिपेयर थे, तो दे वर्कड इन देयर फेवर. सो I think success of any governmental social control depends more on a voluntary compliance than on government informants. जब इंडिविजुअल खुद से गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है लीडरशिप का कोई भी लॉज लेके आना या लोगों से फॉलो करवाना. अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ एल्डमैन, चाइना इज मोस्ट ट्रस्टेड बाय इट्स पॉपुलेशन, where Singapore ranks 6th and South Korea at its 10th place. Governments with high level of trust can effectively maintain enormous lockdowns. यहाँ पे ईरान की गवर्नमेंट में there is a crisis of illegitimacy, जहाँ पे Iranians they have ignored warnings to stay at home and continue to spread the virus. और आगे हम देखते हैं कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी है जो दे आर ट्रबल्ड बाय पोलराइजेशन, इनइक्वालिटी एंड अ सेंस ऑफ फेल्ड प्रॉमिस. सो दिस शोज द लो सिटीजन ट्रस्ट. And Italians have not trusted their governments. This is similar to the Hong Kong. And next is digitalization versus data privacy. I want to quote a line: "A ship in the harbor is safe, but that is not what ships are built for." By William said, as digitalization is like a ship which is loaded with technologies that has huge capacity for combating against this infectious disease. Digital platforms have become the center of human life, जहाँ पे digital technologies help the government to enforce protection measures, contact tracing, or rush deployment and adoption. Also raises profound concerns about surveillance, privacy, and data protection. The use of contact tracing app. Indian government has proposed a personal data protection bill in 2019. So we have WhatsApp has shown a new privacy policy which is showing a double standards in dealing with the Indian citizen and British one. So Indian government has resisted it boldly. Other countries of the world need to have to be serious about the privacy rights of their citizens. They must ensure data of their citizens are in the safe hands. Now, last part is that populism versus expertise. Administration performance shows that populism fails to measure up to the challenge. It requires a discipline and a focus to deal with such a critical crisis, which populism doesn't provide. Populist leadership और ये जो बहुत ही भयावह स्थिति है, क्राइसिस है,
yeah, these are not a good mix. So because and Donald Trump behavior of this in this pandemic has scarred the American history. This is an end of populism as a governing method. We can see a populist method winning because of the travel bans or putting a conspiracy theory कि ये बीमारी वहाँ से आई, overseas से आई है. Ultimately, we need to believe in an objective reality. We need expertise to find a scientific solution. Now, at the last, I'm concluding it with as immunity became the buzzword, all the attention from wealth has shifted to immunity and health and lifestyle, healthy lifestyle. So it's time for us to cooperate in this scenario and work for the better. Thank you. Thank you, Achal. And I must say that, as you pointed out, how nationalism has triumphed over internationalism and how states are getting shrinked and closed up, or how populism has come to demonstrate itself as the higher echelons of the democratic machinery or the autocratic machinery